गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए समग्र ओबेसिटी क्लिनिक की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्घाटन मशहूर टीवी और फिल्म अभिनेता राम कपूर ने किया। इस क्लिनिक में बैरिएट्रिक सर्जन, न्यूट्रिशनिस्ट और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ मिलकर मरीजों के लिए पर्सनलाइज्ड वेट मैनेजमेंट प्लान तैयार करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राम कपूर ने कहा है कि फिटनेस सिर्फ वजन कम करने का नाम नहीं है, बल्कि मजबूत, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करना असली फिटनेस है। डॉक्टरों के मुताबिक मोटापा कई गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज़, दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। ऐसे में यह नया क्लिनिक लोगों को सही मेडिकल गाइडेंस, लाइफस्टाइल बदलाव और आधुनिक इलाज के जरिए स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ने में मदद करेगा। Obesity clinic in Gurgaon at FMRI, and we have called various guests. Mr. Ram Kapoor, as you all know, has a remarkable journey of losing more than 55 kgs with his grit and determination. He is an example for us, and who better than him to initiate this program as an obesity clinic in Gurgaon, FMRI Gurgaon. I'll also like to call my other colleagues, Dr. Amitabh Parthi, Dr. Raman Abhi, Dr. Rajiv Eri, Dr. Kriplani sir, to come on the stage and be the part of panel discussion. So, as you all know, diabetes, obesity is a problem which India is facing today. It is estimated that 41 million kids in India are in the obese classification. So obesity has been classified. Now obesity all over the world, all the associations, be it WHO, the various associations concerned with, like American Association of Clinical Endocrinologists, have classified obesity as a disease. So that is why a multi-specialty approach is required for the management of obesity as a disease. It was earlier called as lazy man syndrome or a lifestyle disease, which it is not. It is a disease, and one has to address obesity as a disease. So to begin with, Mr. Ram, we know that you have been able to lose so much, and you emphasize the importance of being fit rather than losing weight. What prompted you to start this journey of being a fitter person that you are today? What made you start this whole journey? I did not want to continuously set the wrong example. I was doing well in my career because all of you, the nation and everybody accepted me as an overweight man. Even though I was doing lead work in television, I was still accepted and loved, which is very good. I will always be humble for that. But it was not setting the right example to my children. Being overweight, being unhealthy is not setting the right example to your children. I have a son who looks up at me for everything. And even though I was doing well financially and career-wise, I was not doing well on the health thing. I had diabetes, I had all kinds of ailments that come with being obese. I had all of them. And at some point in time, I wanted to teach my son that it's not only about profession, it's also about personal health. And also, I had failed twice. Twice I had lost 30 kilos through determination and willpower, and it came back because I was not doing it correctly. And my son was noticing all of that also. So it was bothering me that I'm failing in front of my children, which is not something any father likes to do. So because of that, I kind of educated myself as much as I could, and I took about 6 months to get in touch with myself. It's very important to get in touch with yourself before you're starting a journey like this. And I did all of that, and whatever I did through trial and error, it's worked for me because I think when you educate yourself and you get in touch with yourself, then you can really make a change. So what prompted me was definitely my children. You talked about your education, on this journey. You self-taught yourself for this weight loss program, or you took some help from some professional for your weight loss journey? Not a single professional. Nobody. I just learned myself. I used to watch podcasts. I used to listen to the professionals. I used to do lots and lots of reading. And then I just started it myself. So yeah, it's completely self-taught. I was reading about your weight loss journey. I've seen many things about your weight loss journey. So I've noticed that you were
doing a calorie deficit for yourself, and you were doing 2 meals a day and no dinner after 6:30 p.m. How were you able to motivate yourself for doing all this, and what made your life easier on this journey? Like I said, the motivation was my children. But once I started educating myself, a lot of things came to light. As in, all of us, we've been raised thinking about food in a very different way, which is not necessarily correct. But none of us know this because not only this country, every country, our entire generation, I would say, has been raised where the facts are not necessarily correct. So I just took time to really listen to all the experts. You know, these are nutritional experts who have like 20 million followers, and they really know their stuff. So I used to listen to their podcasts, and I used to hear their sessions and all of that. And I think you realize a lot of things which are shocking, because we've all been raised with, I mean, I don't need to say it, y'all are all doctors in this room, you all know what I'm talking about. We've all been raised thinking about food in a very wrong sense. And if you take the time to educate yourself, then it'll open your eyes in a lot of ways. And once your eyes get opened and you have gotten in touch with yourself and you know why you want to become fitter, if it's important enough to you, you will find a way to do it. Anybody who doesn't manage doing it is either not educating himself or herself, or is just not getting in touch with themselves correctly. If you can manage to do these two things, I don't think you should waste your time. Weight loss is not the reason you need to transform like this. If you want to become overall fitter and healthier, which is much more than just weight loss, then you can do what I've done. So it's not about weight. I tried to lose weight twice in my life over 5 years, and it came back because I was only focusing on weight. This time I didn't care about weight. I focused on fitness, I focused on health. So weight is just one small aspect of that, because fitness is many different things, including mental fitness. Athletes and sports stars and people that stay fit and stay healthy, even after they retire, they always stay fit and healthy because they don't focus on only weight. They focus on overall fitness and health. So my advice to anybody would be, if you're wanting to lose weight, ask yourself why you want to lose weight. If you want to lose weight only because you want to lose weight for some birthday party or somebody's wedding or to get into some outfit, I don't think it's worth it. But if you want to be fitter, if you want to be healthier for the rest of your life, then it's a very different process. And like I said, weight should not be the focus. Overall fitness and health should be the focus. So everybody wants to know what I did. It doesn't matter what I did. Everybody has their own path to follow. What works for somebody does not work for somebody else. But it's, if you can convince yourself that you want to be a healthier, fitter person for life, you will find your own way. You don't have to follow anyone else's way. But the important thing is to change your mindset. If you want to only lose weight, ask yourself why you want to lose weight. Trust me, you will fail, because weight loss is not guaranteed to last. I myself learned over 5 years. प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन FMRI गुड़गांव से। आज हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। हमने एक कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक लॉन्च किया है, जिसका मेन पर्पस है कि लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाई जाए कि ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़। अब पहले लोग जो समझते थे कि ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल कंडीशन है या लेजी मैन सिंड्रोम है, हम उससे लोगों को झकझोर के बताना चाहते हैं कि नहीं, ये एक डिजीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट भी एक बीमारी की तरह करनी चाहिए। जो स्पेशल है हमारे यहाँ ओबेसिटी कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक में, वो ये है कि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे इसको ट्रीट करने के लिए। हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करेंगे, उसके पैरामीटर्स के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे और ये देखेंगे कि उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, क्या साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास, और कैसे हम उस पेशेंट को इन साइंटिफिक एविडेंस को इस्तेमाल करके मदद कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ICMR की गाइडलाइन के हिसाब जाएं तो साउथ एशिया, इंडिया यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारे लोगों का ओबेसिटी का जो कट ऑफ है वो 23 है। अगर विदेश में जाके देखें तो वो 25 मान के चलते हैं। 25 से 30 को
ओवरवेट कहते हैं, 30 के ऊपर ओबेसिटी कहते हैं। बट भारत में उल्टा है, 23 के ऊपर सबको ओबेसिटी कहते हैं, 27 के ऊपर अगर ओबेसिटी है और साथ में बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, कोई और कंडीशन है, हार्ट की कंडीशन है, तो उसको ट्रीटमेंट ही डिफरेंट है उसका। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं भारतीय पेशेंट्स के लिए, साउथ एशियन पॉपुलेशन के लिए। यही जागरूकता लोगों में जाना बहुत ज़रूरी है कि हमारा भारत का जो इंसान है, जो भारत में, अगर आप जो व्यक्ति हैं जो भारत में रहता है या पाकिस्तान बांग्लादेश में रहते हैं, साउथ एशियंस हैं, हमारे पैरामीटर्स आर डिफरेंट एज कम्पेयर टू पैरामीटर्स ऑफ कॉकेशियन पॉपुलेशन, यानी कि जो वेस्टर्न पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो हमारे अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट भी ज़्यादा है। हमारे भारत में देखा गया है कि जो लोगों में ओबेसिटी है वो भी विसरल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, अंगों के आगे पीछे फैट का होना ज़्यादा देखा गया है। तो इस करके उनमें वो कंडीशंस, एक समान वेट का आदमी अगर आप वेस्टर्न देश से देखें और भारत देश से देखें, फैट कंटेंट भारतीय पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ पर कभी कभी लोगों का बीएमआई नॉर्मल होने पे भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ओबेसिटी रिलेटेड होती हैं। तो ये सब चीज़ें जानना, इसी के लिए हमने कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक खोला। तो नाम इसका कॉम्प्रहेंसिव इसीलिए रखा गया है। तो ये हमने सोचा कि क्योंकि भारत का परिप्रेक्ष्य डिफरेंट है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे को अपनी अप्रोच भी डिफरेंट रखनी है। तभी हमने एक नोवल अप्रोच से एक कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी मैनेजमेंट क्लिनिक स्टार्ट किया है। और हमारे हमें हम इस बात का गर्व है कि हम इसको स्टार्ट कर पाए और सब लोगों को एक छत के नीचे एक एक कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन अंडर वन रूफ वाला कंसेप्ट जो है वो दे पाएँ, ताकि लोगों को और कहीं जाना ना पड़े। उनको सारी चीज़ें जो डायबिटीज़ ओबेसिटी रिलेटेड है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो घुटनों का तकलीफ है, कमर की दर्द है, या मैकेनिकल प्रॉब्लम जो ओबेसिटी के कारण होती है, हार्ट की तकलीफ है, ओएसए है, पीसीओडी है, अंडर वन रूफ कैसे इसका कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट मिले, ये हमने कोशिश की है। क्या लगता है कि इंडिया में GLP-1 दवाओं की एक्टिव ओबेसिटी देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ मैं। देखिए, GLP-1 जो रिसेप्टर एगनिस्ट जो दवाइयाँ आजकल हैं, ये रेवोल्यूशनाइज करेंगी ओबेसिटी मैनेजमेंट को। आपको पहले ये समझना है और लोगों तक क्लियर और बिल्कुल एविडेंस बेस्ड मैसेज पहुंचाना है कि ये दवाइयाँ एक अच्छी चीज़ है जो हमारे लिए आई हैं। अब अच्छा चीज़ ये है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें फार्मा जो सेक्टर है वो बहुत एडवांस्ड है और हम इसमें दुनिया में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। मेरे को ये पूरा यकीन है कि जैसे GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट जो दवाइयाँ हैं, इनकी पेटेंट्स कम होंगे और ये भारत में सस्ते कॉस्ट पे मिलेंगी, तो इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, विच इज बिसाइड्स जेंडर, औरत हो, मर्द हो, अमीर हो, गरीब हो, भारत में ओबेसिटी बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं कि ओबेसिटी पहले अमीरों की बीमारी है, आजकल ओबेसिटी निम्न स्तर के वर्गों में भी देखी जाती है। अब ये एक्सेस टू हेल्थ नहीं था। GLP रिसेप्टर एगनिस्ट की दवाइयाँ बहुत महंगी थी, उसकी कमाई इतनी नहीं होती, तो वो ये दवाई कैसे लेता। अब फॉर्चुनेटली ये दवाइयाँ सस्ते दामों पे भारत में उपलब्ध होंगी, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और इसको कैसे साइंटिफिकली इस्तेमाल करना है, किस पेशेंट में इस्तेमाल करना है, उनको कैसे कैटेगराइज करना है, इसीलिए हमने कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक लॉन्च किया है। देखिए, कारण तो मल्टीफैक्टोरियल है। हमारा जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा वेस्टर्नाइज हो रहा है, खाना पीना थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। आजकल लोग बैलेंस डाइट की तरफ नहीं जाते हैं, फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, रिफाइंड फूड की तरफ जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाते हैं, स्टोर्ड फूड की तरफ जाते हैं। और ये सब चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं। एंड जो हेल्दी चीज़ें हैं जैसे कि एक्सरसाइज, उससे दूर हो गए हैं। लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है, स्ट्रेस कॉर्टिसोल को बढ़ाता है जिससे कि ओबेसिटी होती है। तो अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफन ये एक लाइफस्टाइल इशू है, बट साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम भी है। तो इट इज़ नॉट जस्ट कि कोई इंसान अगर बिहेवियरल उसका ठीक है तो वो मोटा नहीं हो सकता। कुछ कुछ हार्मोनल चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ जेनेटिक इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से भी इंसान मोटा हो सकता है। सर बेली फैट सबसे खतरनाक फैट होता है अगर है। देखिए, जैसे कि अभी डॉक्टर कॉल आपको बता रहे थे कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से फ़र्क है। यहाँ पर देखा गया है कि सेम BMI पर जो एक इंडियन पेशेंट है, अगर हम एक वेस्टर्न से कंपेयर करें तो बेली फैट ज़्यादा है। बेली फैट जो होता है ये दर्शाता है कि हमारी बॉडी में विसरल फैट कितना है, हमारे पेट के अंदर कितना फैट है, हमारी खून की नसों के अंदर कितना फैट है, और हम कितने प्रोन हैं इस फैट से गंभीर बीमारी को याद करें। उस समय ना तो मोबाइल होता था, दूरदर्शन पे एक टेलीविज़न सीरियल आता था, सब लोग 7 बजे उसी को देखने के लिए जाते थे, उसके बिना और कुछ होता नहीं था। तो सब लोग एक्टिव होते थे, खेलते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे। बट अब लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बच्चों के पास इन सब चीज़ों की एक्सेस है,
तो मेजॉरिटी ऑफ वक्त जो है या तो अपनी स्टडीज़ में बच्चे बिताते हैं या घर पे बैठ के वीडियो गेम्स या अपने फ़ोन के ऊपर टाइम व्यतीत करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके माध्यम से भी ये पेरेंट्स को इनलाइटन करना, बच्चों को खुद इनलाइटन करना और पेरेंट्स के लिए खुद भी ये चीज़ को रियलाइज़ करना कि एक्सरसाइज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ना केवल बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम से बचाती है बट हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। सर आपको सोशल मीडिया में जहाँ भी देखिए इंस्टाग्राम, हर जगह हर एक कोई बंदा डॉक्टर हुआ है, वो टिप्स दे रहा है मोटापा इस तरह से कम करें, ये खाएं, इसमें आप क्या कहेंगे? सच है कि देखिए आई थिंक जो एक एक्सपर्ट है कि हमारे एडवाइस तो बहुत मिलती हैं बट हमको ये देखना है कि हमें राइट एडवाइस कहाँ से मिल रही है। तो जो एजुकेटेड इंसान है और वो एजुकेटेड इंसान सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो एजुकेटेड इंसान एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकता है। आज हमारे साथ मिस्टर राम कपूर थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी अच्छे जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको उन्होंने फॉलो करते हुए अपनी वेट लॉस की जर्नी को अचीव किया। तो एक राइट एडवाइस आइडेंटिफाई करना है। ऑफ कोर्स अगर हमें एक ब्लैंकेट मिले तो डॉक्टर्स ऑफ कोर्स सब एजुकेटेड हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे वे में गाइड कर सकते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में जहाँ पर हमने ये ओबेसिटी क्लिनिक को लॉन्च किया है, तो जैसे डॉक्टर कॉल बता रहे थे कि अंडर वन रूफ सारे स्पेशलिस्ट, तो ओबेसिटी हमें पता है हार्ट की प्रॉब्लम को भी लेके आती है, जॉइंट प्रॉब्लम को भी लेके आती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी करती है, कैंसर जैसे रोग को भी करती है। तो जब सारे डॉक्टर्स मिल के ऐसे पेशेंट्स को इवेलुएट करते हैं तो जो उसकी आउटकम होती है वो बेस्ट होती सर कहते हैं कि 80% आपकी डाइट होती है ना, 20% आपका वर्कआउट। तो क्या ये बात सच है? मगर जैसे 80% कहते हैं डाइट है, तो डाइट में क्या होता है, लोग कहते हैं रात का खाना आप छोड़ दीजिए, आप मोटापा कम कीजिए। ये सच है? है। देखिए हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में एक हेल्दी डाइट को अडॉप्ट करना, अगर किसी इंसान को वेट लूज करना है तो अबाउट 500 टू 600 कैलोरीज पर डे के डेफिसिट में जाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के आजकल बहुत हेल्थ बेनिफिट्स देखे गए हैं, बट उसको भी एक सुपरवाइज्ड वे में, क्योंकि हर चीज़ जो आपको कुछ फ़ायदा करती है उसका एक पोटेंशियल होता है कि वो आपको नुकसान भी कर सकती है। तो एक स्पेशलिस्ट जिस क्लिनिक की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होंगे, वहाँ पर एक फिजिशियन होगा जो आपको गाइड कर सकता है, आपकी मेडिसिन को आपको ऑप्टिमाइज कर सकता है। और अगर आपकी बीमारी एक एक्सट्रीम के बाहर चली गई है तो एक सर्जन भी है आपके पास जो आपको एक राइट अप्रोच दे सकता है जिससे कि आपकी लाइफ वापस हेल्दी हो सके। सर इंडिया में पेशेंट को पहले देखिए जो बेरियाट्रिक सर्जरी है वो एक बहुत ही अ, एक डिफाइंड चीज़ है। ये नहीं कि कोई भी मोटा इंसान है उसको बेरियाट्रिक सर्जरी करनी है, तो एक बहुत वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जो देती हैं। तो पहले ये कहा जाता था कि किसी भी इंसान को जिसका बीएमआई 40 से ज़्यादा है या अगर 35 से ज़्यादा है और साथ में उसको मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो इनमें बेरियाट्रिक सर्जरी करनी चाहिए। बट जब देखा गया कि इन सर्जरी से लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, तो गाइडलाइंस को और रिलैक्स कर दिया गया। और अगर हम आज की डेट में देखा जाए तो हमारे इंडियन पॉपुलेशन, जैसे हमने कहा कि बाकी वेस्टर्न पॉपुलेशन से भिन्न है, तो इनमें गाइडलाइंस और भी कम है कि अगर कोई इंसान जिसका बीएमआई 27.5 से ऊपर है और साथ में उसको कोई डायबिटीज़ है या उस तरह का रोग है, तो इन पेशेंट्स भी बेरियाट्रिक सर्जरी से बेनिफिट कर सकते हैं। इंडिया इंडिया क्या आने वाले समय में ऑफ कोर्स ये तो आगे आने वाले समय में नहीं, ये तो आज की डेट में हेल्थ क्राइसिस है और जितना जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई करें, जितने जल्दी हम इसके लिए रिमीडियल मेजर्स लें, उतना हमारी जनरल पॉपुलेशन को फायदा होगा। ये हमें क्लिनिक 4 साल पहले खोलना चाहिए था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट है भारत में। तो ऑलरेडी मोटापा ओबेसिटी इज एपिडेमिक नाउ। आप देखिए बच्चों में भी ओबेसिटी हैज बिकम एन एपिडेमिक। जितनी भी एम्स द्वारा स्टडीज की गई है जनरल पॉपुलेशन में ये पाया गया है कि ओबेसिटी इज रियली एन एपिडेमिक इन यंग चिल्ड्रन इन इंडिया। ये बहुत वरीसम बात है। हमारा देश का भविष्य अगर आज मोटा है तो कल आप देखिए कि बीमारी का लोड कितना होगा, लाइफस्टाइल डिजीज का लोड कितना होगा। ओबेसिटी के कारण जो डायबिटीज है, घुटनों की तकलीफें हैं, कैंसर्स हैं, वो कितने ज़्यादा कॉमन होंगे। तो इसको देख के मैं घबरा जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये हम क्लिनिक खोलने में ही लेट हो गए। हमें तो ये आज से 4 साल पहले खोलना चाहिए था। मोटापे को दूर करने के लिए घरेलू उपाय कितने कारगर हैं? देखिए घरेलू उपाय में सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो चीज़ समझनी है कि जैसे डॉक्टर जावेद ने भी बताया कि कैलोरी डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्दी कैलोरी डेफिसिट और रेगुलर व्यायाम करना। तो घर में घरेलू उपाय जिसमें भी आप कैलोरी डेफिसिट कर पाते हैं और
रेगुलर एक्सरसाइज कर पाते हैं, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट, उनका इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए मैं, मेरा अनफॉर्चुनेटली कोई चैनल है नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो उसके बारे में मैं हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। देखिए आयुर्वेद का ये पुराना है, इसको आयुर्वेद भी नहीं कहेंगे, इसको घरेलू नुस्खे कहेंगे। तो इनका क्या रोल है, कोई एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस जब तक ना हो, डॉक्टर के मुंह से शोभा नहीं देता उसके बारे में अपने विचार रखना। जो भी चीज़ एविडेंस बेस्ड है हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसका कोई एविडेंस नहीं है आई विल रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट। देखिए मैं सिर्फ यही चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारे आज चीफ गेस्ट थे यहाँ पर मिस्टर राम कपूर, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आपका बुढ़ापा कैसा निकलेगा, कितनी हेल्थ में निकलेगा, आपको इसको दिमाग में रखना है कि आप कितने डिपेंडेंट होंगे किसी के ऊपर अपने नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, बाथरूम जाने के लिए, नहाने के लिए। वो सब डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना फिट रखते हैं आज। सो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड treating obesity, getting obesity treated as a disease is also very important consequently.